Dear students, today let us study what are haloarenes. Haloarenes, that is aryl halides. Aryl halides. What are aryl halides? These are halogen derivatives of benzene. Benzene molecular formula is C6H6. Each carbon atom of the benzene ring carries one hydrogen atom, and there is presence of alternate double and single bond. और एग्जैक्ट स्ट्रक्चर पे जाएं, delocalized pi electron. So if the hydrogen atom of benzene is replaced by halogen atom, अगर हम हाइड्रोजन को यहां से रिप्लेस कर दें किसके साथ, with halogen atom, it is called haloarene or aryl halide. Haloarene may be monohalogen derivative of benzene or dihalogen derivative of benzene, or monohalogen derivative, dihalogen derivative of aromatic hydrocarbon. But one thing is important, halogen atom should be directly attached to the benzene ring. This is very important. For example, जरूरी नहीं है बच्चे बेंजीन ही हो, मे बी टॉलिन, जैसे हम ये दिखा दें यहाँ पे, it is also aryl halide. Halogen atom should be directly attached to benzene. अगर आप इसी हैलोजन को यहां लगाते हैं, सपोज ये बच्चे, इस कंपाउंड को क्या आप एराइल हैलाइड कह सकते? नो, इट इज एल्काइल हैलाइड. मोर स्पेसिफिकली वी कैन कॉल इट एर एल्काइल हैलाइड. एर मतलब एरोमेटिक एल्काइल हैलाइड. But purely aryl halides are those in which halogen atom is directly attached to the benzene ring, and these are obtained by replacing one or more hydrogen atoms of the benzene ring with the halogen atom. So halogen derivatives of aromatic hydrocarbons in which halogen atom is directly attached to the benzene or aromatic ring, जैसे मैंने बोला aromatic ring. बेंजीन रिंग के बजाय बेंजीन का डेरिवेटिव भी हो सकता, जैसे टॉलिन है, एरोमेटिक रिंग, और कॉल्ड एराइल और हेलोएरिन. जनरल फॉर्मूला हो गया ARX. व्हाट इज AR? AR इज एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन व्हिच मे बी बेंजीन और इट्स डेरिवेटिव. एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, जैसे मैंने टॉलिन की बात, वेयर AR रिप्रेजेंट एराइल ग्रुप. Some important examples of aryl halides जैसे chlorobenzene, 2-chlorotoluene. This is the aromatic hydrocarbon part, aryl part, and with respect to methyl, chlorine is attached to second position, so we call it 2-chloro, or we can also call it orthochlorotoluene. जैसे हमने इसको क्या बोला बच्चे, 2-bromo or orthobromotoluene. Toluene is the parent aromatic hydrocarbon. Here we have 2 chlorine atoms. It is dihalo derivative of benzene, so it is 1,2-dichlorobenzene, and this is bromobenzene. Now let us have nomenclature of haloarenes, that is aryl halides. According to common system, they are called as aryl halides. For example, this will be called as phenyl. हम इसको क्या बोलेंगे बच्चे? We will call it phenyl chloride. This compound will be called as phenyl chloride. Yeah. However, according to IUP system, the name of the compound is derived, aromatic compound is derived by prefixing the word halo to the name of parent aromatic hydrocarbon. For example, chlorobenzene, we will call it chlorobenzene. This compound will be called as chlorobenzene. So if parent aromatic hydrocarbon carries a substituent, अगर पेरेंट एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन पे ऑलरेडी सब्स्टिट्यूएंट लगा है, जैसे बच्चे मिथाइल
ऑलरेडी लगा है, फिर क्या करना है, द पोजीशन ऑफ द हैलोजन एटम with respect to the substituent is indicated either by Arabic numerals or by prefix artho, meta, para. Arabic मतलब 1 2 3 जैसे बोलते हैं हम, जैसे इसको क्या बोलेंगे बेटे आप, will call it 2-chlorotoluene. This compound will be called as 2-chloro. With respect to the substituent, we are showing the position of the halogen atom with respect to the substituent present on parent aromatic hydrocarbon. So here this is the parent aromatic hydrocarbon and we will call it 2-chlorotoluene. Similarly, or he is saying that we can use the prefix artho, meta, para, so we can call it orthochlorotoluene. Ortho, these positions, 1 2 position ortho, 1 3 position meta, and 1, this is 1 2 3 4 position para. So with respect to substituent, parent, the main substituent, that is methyl in this case, this position will be ortho position. This is meta, this is para. So you must understand this. For example, what we will call, how we will name this compound. This is the compound. This is either you can name it 4-chlorotoluene or we can call it para-chlorotoluene. For example, this one. And if 2 halogen atoms are attached, we can call nitri. We can use, for example, if we have this compound and we have to name it, we'll call it 1,4-dichlorobenzene. Now, parent compound is benzene, 1,4-dichlorobenzene, or we can call it para-dichlorobenzene. So this is how we name them. इसमें बच्चे आपने याद रखना है, halogen is treated as substituent in the nomenclature, and the position of halogen atom with respect to the substituent already attached. In case of aromatic hydrocarbon is indicated either by Arabic numeral or by artho, meta, para. For example, 2-chlorotoluene, 4-chlorotoluene, or orthochlorotoluene, para-chlorotoluene. So this is how we name them, aryl halides. Now let us move further. If we move further, what do we find? Move further. Let us have this example also, as we discussed here. Let us discuss this also, this example. So if 2 halogen atoms are attached to the benzene, then what to do? For example, this is bromine, this is chlorine. Now what to do? Now you have learned in the nomenclature of aliphatic compounds, alphabetical order. Bromo will be given preference over the chloro. So numbering will be done from this side. 1, 2, 3, 4. So it is 1 bromo, 4 chlorobenzene. 1 bromo, alphabetical order. 1 bromo, 4 chlorobenzene. आप मेरे से क्वेश्चन कर सकते हैं यहाँ पे अगर चाहें तो. क्वेश्चन क्या होगा, आंसर मैं दे दूंगा खुद ही और खुद ही क्वेश्चन कर दूंगा. जैसे ये कंपाउंड है, जैसे अगर आप एलिफेटिक कंपाउंड्स को स्टडी करते हैं तो वहां पे आप, जैसे ये कंपाउंड आपका है बच्चे, दिस इज द कंपाउंड से CH3. Let us draw comparison. This is the compound. So you have the option to number from this side as well as this side. Why there is option? Because सेट ऑफ लोकेंट देखा जाता है इसमें, लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंट, इधर से भी 1 2 3 4, इधर से भी 1 2 3 4. हम अल्फाबेटिकल ऑर्डर को प्रेफरेंस देते, हम इधर से नंबरिंग करते, बिकॉज क्लोरो कम्स बिफोर मिथाइल, M, C comes before M. So alphabetically the numbering should be from this side as per rule. If we get same set of locant from both sides, then alphabetical preferences are given. Now why we ignored this rule here? इसका सिंपल रीजन है बच्चे कि हमने जो मिथाइल है उसको पार्ट ऑफ पेरेंट एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन माना है.
दिस इज द पेरेंट एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन टॉलिन, इसका नाम है टॉलिन बच्चे, ये पेरेंट एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है। सो विद रिस्पेक्ट टू दिस हमने देखना क्लोरो कहां पे है, हमने मिथाइल को एज सब्स्टिट्यूएंट कंसीडर ना करके इसको पेरेंट हाइड्रोकार्बन का एक हिस्सा माना है, so we call it toluene. So with respect to methyl, now we are seeing where is the chloro, so that is why we are giving preference to the methyl, because methyl is being considered as part of the parent aromatic hydrocarbon, so we call it what, 2-chlorotoluene. ये थोड़ा सा बेसिक डिफरेंस आपने देखा बिटवीन द एलिफेटिक एंड एरोमेटिक। यहाँ हम इसको पेरेंट का हिस्सा नहीं मान सकते, इसमें रूल नहीं है एलिफेटिक, बट एरोमेटिक में है, ठीक है ना। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन एज वन यूनिट हमने देखा यहाँ पे, इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो लेट अस मूव फर्दर। तो इसमें हम क्या देखेंगे बच्चे, इसमें हम देखेंगे अब प्रेपरेशन ऑफ हेलोरीन्स, हेलोरीन्स के मेथड्स ऑफ प्रेपरेशन। सिंपल मेथड्स है, कुछ ज्यादा मुश्किल नहीं है। फर्स्ट मेथड इज बाय डायरेक्ट हेलोजिनेशन ऑफ व्हाट, बेंजीन, डायरेक्ट हेलोजिनेशन। डायरेक्टली हम क्या करेंगे, बेंजीन के H को हटा के उसकी जगह हम क्या लगा देंगे बच्चे, हेलोजन एटम। डायरेक्ट हमने आपको बताया कि ऑल कार्बन एटम्स कैरी वन हाइड्रोजन एटम इन केस ऑफ बेंजीन, तो डायरेक्ट हेलोजिनेशन बाय ट्रीटिंग विद हेलोजन। लेकिन एक क्वेश्चन राइज होता है कि क्या सिर्फ हेलोजन से काम चलेगा या कुछ और भी डालना पड़ेगा? यस, जैसे आपने अल्कीन्स में देखा, वहां पे आप सिंपली मीथेन को क्लोरीन से ट्रीट करें इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, काम चल रहा है। यहाँ नहीं चलेगा, वहां फ्री रेडिकल मैकेनिज्म फॉलो होता, सनलाइट ब्रेक करती, यहाँ ये काम नहीं चलेगा बच्चे। यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, हमें एल्यूमिनियम क्लोराइड का इस्तेमाल करना पड़ेगा, ल्यूइस एसिड। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। एल्यूमिनियम बिलोंग टू बोरॉन फैमिली, इट इज इलेक्ट्रॉनिकली डेफिशिएंट। Aluminium belong to boron family, it is electronically deficient, it is a Lewis acid. So what it will do, it will accept lone pair of electron from chlorine, पहले इसे एक्सेप्ट करेगा, बाद में इसको विद इलेक्ट्रॉन पेयर पूरा बॉन्ड ही विथड्रॉ कर लेगा और बना लेगा AlCl4 नेगेटिव, और Cl पॉजिटिव बाहर निकल आएगा, इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल हमें यहाँ पे प्रिपेयर करने की जरूरत क्यों पड़ी, बिकॉज बेंजीन इज इलेक्ट्रॉनिकली रिच, इट हैज 3 पेयर ऑफ pi electrons, benzene has 3 pair of pi electrons, so this chloronium ion, chlorine positive ion, it will attack the benzene ring। मैं आपको मैकेनिज्म दिखाता हूँ इसका, इंटरेस्टिंग मैकेनिज्म। मैंने आपको क्या बताया अभी तक कि जो एल्यूमिनियम क्लोराइड है, बीइंग ल्यूइस एसिड, ये क्या करेगा, व्हाट इट विल डू, इट विल कंबाइन विद क्लोरीन, विद बॉन्ड, ये यहां से क्लोरीन को निकाल लेगा फॉर द टाइम बीइंग, we get AlCl4 negative plus Cl positive. As soon as Cl positive is formed, it will attack the benzene ring. अब benzene ring पे इसने किस पे अटैक किया, pi इलेक्ट्रॉन पे, pi इलेक्ट्रॉन। अब बेंजीन जैसे कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो बेंजीन का इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। अब घर पे बुलाया है तो बच्चे इसको बिठाना तो पड़ेगा, आपके घर में कोई आ जाए, आप चेयर देते हैं उसको, इसको भी बिठाना पड़ेगा। बेंजीन ने क्या किया, अपना इसको बॉन्ड दे दिया, पर बॉन्ड देने के बाद इसने देखा मेरा तो सिस्टम अनस्टेबल हो गया, मेरा तो जो एरोमेटिक करैक्टर है वो लूज हो गया, डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन, जिसकी वजह से बेंजीन रिंग माना जाता है बच्चे एक्स्ट्रा स्टेबल रेजोनेंस, इसमें कंसेप्ट आपने पढ़ा शायद 11th, तो वो चीज इसकी खत्म हो रही है। बेंजीन अब पछता रहा है बेचारा, यार अब क्या करूं, तो हाइड्रोजन एटम से गुहार लगाएगा, तुम अपने आप को सैक्रिफाइस करो, अपना बॉन्ड मुझे दे दो। ये क्या करेगा, एक समझाने का तरीका है, ये क्या करेगा, अब ये कोई बोलचाल, ये कोई लिविंग बीइंग थोड़े के बोलचाल कर रहे हैं, जस्ट टू मेक द स्टडी इंटरेस्टिंग। ये क्या करेगा, यहां से इस बॉन्ड को अपनी तरफ विथड्रॉ कर लेगा, हमें क्या मिलेगा बच्चे, व्हाट वी विल गेट,
we will get chlorobenzene. और साथ में क्या मिलेगा बच्चे? H पॉजिटिव। H पॉजिटिव क्यों? बॉन्ड तो ले लिया, इलेक्ट्रोफाइल बाहर निकला, इलेक्ट्रोफाइल ही अंदर गया, इलेक्ट्रोफाइल ही बाहर गया, तो इट इज इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो एरोमेटिक कंपाउंड्स जब बेंजीन के जो कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन है वो है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जबकि अल्कीन का हमने देखा फ्री रेडिकल, जब हमने मीथेन को ट्रीट किया इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, फ्री रेडिकल, नॉन पोलर, मीथेन इज नॉन पोलर, तो नॉन पोलर का बॉन्ड कहां से टूट सकता? सेंटर से। प्रोबेबिलिटी कहां से? सेंटर से। बेंजीन रिंग इज इलेक्ट्रॉनिकली रिच, इसके ऊपर कौन अटैक कर सकता? इलेक्ट्रोफाइल। तो हमने किसकी हेल्प ले ली? एल्यूमिनियम क्लोराइड की। अब आप मुझे ये बताओ कि एल्यूमिनियम क्लोराइड ने क्या काम किया? इसने हैलोजन को कैरी किया, पहुंचाया बेंजीन तक, इट इज कॉल्ड हैलोजन कैरियर। अब जो H पॉजिटिव बनेगा ये यहां से Cl4 से क्या बचे? Cl नेगेटिव ले लेगा और बना लेगा HCl, एल्यूमिनियम क्लोराइड फिर से रीजनरेट हो जाएगा, दैट इज कैटलिस्ट। देयर बुझू आएगी कि एक चीज याद रखना, एनहाइड्रस वर्ड यहां लिखा होता है, एनहाइड्रस। एनहाइड्रस इसलिए कि अगर बीच में थोड़ा भी वाटर होगा क्या होगा? एल्यूमिनियम क्लोराइड क्लोरीन से इलेक्ट्रॉन पेयर लेने के बजाय वाटर से ले लेगा, इसका जो ल्यूइस एसिड करैक्टर है वो खत्म हो जाएगा, इसकी जो एफिशिएंसी है टू एक्ट एज व्हाट? ल्यूइस एसिड, वो खत्म हो जाएगी। इसलिए इसको एनहाइड्रस फॉर्म में ही डालना जरूरी है, या फिर फेरिक क्लोराइड का बच्चे आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये था बच्चे बाय ट्रीटिंग बेंजीन विद हैलोजन in presence of anhydrous aluminium chloride or ferric halide, the reaction is carried out in the absence of sunlight. सनलाइट नहीं पड़ने देनी, अदरवाइज सनलाइट क्लोरीन को सेंटर से ब्रेक करके फ्री रेडिकल बना देती है, सारा सिस्टम आपका खराब हो जाएगा। ये बच्चे यहाँ मैकेनिज्म मैंने समझाया, ये लिखा हुआ है ना। एल्यूमिनियम क्लोराइड विद पेयर यहाँ से निकालेगा, इलेक्ट्रोफाइल बनेगा, ये अटैक करेगा और फिर ये वापस आएगा। क्यों आएगा मैंने बता दिया आपको कैसे। बेंजीन अपना जो एरोमेटिक कैरेक्टर लूज किया उसको रीगेन करना है। अगर आप एक्सेस ऑफ क्लोरीन का इस्तेमाल करते हैं तो मोनोहैलोजिनेशन के बाद बच्चे डाइहैलोजिनेशन स्टार्ट हो जाएगी। मोनोहैलोजन बना दिया आपने, जैसे बना दिया क्लोरोबेंजीन, मैं आपको यही बता देता हूँ, यहाँ लिखा हुआ है इसलिए बता देता हूँ आपको। जैसे आपने मोनोहैलोजन बना दिया, वन स्टेप कर दिया, कहता अगर आपने हैलोजन एक्सेस में रखा होगा एल्यूमिनियम क्लोराइड भी तो फिर डाइहैलोजिनेशन हो जाएगी। और एक इंटरेस्टिंग चीज बता दूं, हम पढ़ेंगे अराइल लाइट में कि जो हैलोजन एटम है इट इज ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग। ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग का मतलब है कि नए एंट्रेंट को वंस द हैलोजन इज ऑलरेडी प्रेजेंट इन द बेंजीन रिंग इट डायरेक्ट्स द न्यू एंट्रेंट टू ऑर्थो एंड पैरा। ये डायरेक्शन देता नए एंट्रेंट को ऑर्थो और पैरा पे जाने के लिए। क्यों देता वो हम इसकी प्रॉपर्टीज में आपको डिटेल में समझा देंगे। तो वी गेट ऑर्थो डाइक्लोरो एंड पैरा डाइक्लोरो बेंजीन। ये एक और इंटरेस्टिंग चीज यहाँ लिखी हुई है, अगर आप टॉलिन को लिख के, टॉलिन ये इसको लेके एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन बेंजीन ना लेके आप टॉलिन को लेते हैं बच्चे, टॉलिन ना, इसकी करते हैं आप हैलोजिनेशन, व्हाट विल हैपन? हो जाएगी बड़े मजे से, आराम से होगी। एल्यूमिनियम क्लोराइड इलेक्ट्रोफाइल तैयार होना, इलेक्ट्रोफाइल ने किस पे अटैक करना बच्चे? बेंजीन पे। लेकिन क्वेश्चन राइज होता है कि जैसे मैंने कहा कि जो हैलोजन है दैट इज ऑर्थो एंड पैरा, तो मिथाइल क्या है बच्चे? याद रखना मिथाइल भी ऑर्थो एंड पैरा है। दिस मिथाइल क्यों है ये भी बताऊंगा बाद में। ऑर्थो एंड पैरा मतलब मेटा पे नहीं आपने अटैक करवाना, मेजर प्रोडक्ट इसमें यही बनेगा और इसमें भी मेजर प्रोडक्ट बनेगा पैरा वाला, ऑर्थो में स्टीरिक इंटरेस्ट रहेगी, मेटा बिल्कुल कम बनेगा इसलिए हम शो नहीं करते। तो मिथाइल ग्रुप ये देखें बच्चे, इट इज आल्सो ऑर्थो एंड पैरा। प्लस क्या बनेगा बच्चे? HCl। HCl कैसे? जहां जहां क्लोरीन ने आना वहां से H निकलना, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है, दिस इज इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। एक और चीज यहाँ पे दिखाई है वो भी हम देख लेते हैं, ये क्लोरीनेशन, ब्रोमिनेशन, आयोडीनेशन की बात कर रहा है कि डायरेक्ट आयोडीनेशन इज नॉट यूजफुल। उसका कारण बता रहा है कि डायरेक्ट आयोडीनेशन यूजफुल नहीं रहती है क्योंकि जो HI प्रोड्यूस होता है दैट इज वेरी गुड रिड्यूसिंग एजेंट, इट रिड्यूसेस बैक आयोडोबेंजीन टू बेंजीन, इसलिए आयोडीनेशन की जाती है इन प्रेजेंस ऑफ HiO3। HiO3 इज ए वेरी पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इसका काम है कि जो बने हमारा क्या बने बच्चे, जो HI बने उसके साथ ये रिएक्ट करके वाटर और क्या बना दे? आयोडीन। आयोडीनेशन करने के लिए वो क्या बोल रहा है? डायरेक्ट आयोडीनेशन इज नॉट यूजफुल बिकॉज HI प्रोड्यूस्ड, जैसे HCl बना बच्चे, HBr बना, ऊपर वाले देखिए ये बना,
They are not reducing agents, but HI is a very powerful reducing agent. It is very powerful. ये reduce कर देगा इसको वापस बेंजीन और आयोडीन में. तो इससे बचने के लिए reaction is carried out in presence of HiO3, which is a powerful oxidizing agent. HI को हमने लड़ा दिया किससे? HiO3 से. ये reducing agent, ये oxidizing agent. ये आपस में लड़ मरेंगे, हमारा काम हो जाएगा. क्या बन जाएगा बच्चे? आयोडीन और fluorination fluorobenzene cannot be prepared by direct fluorination because reaction is very violent. मैंने आपको पहले बताया था कि फ्लोरोबेंजीन बनाना या फ्लोरिनेशन करना थोड़ा सा टफ होता है. उसका कारण क्या होता है कि फ्लोरीन फ्लोरीन बॉन्ड इज वेरी वीक. इसका रिएक्शन बड़ा फास्ट होता है. ये जो लोन पेयर्स हैं इसके, ये इस बॉन्ड को रिपेल करते हैं. आप सोचेंगे क्लोरीन में ऐसा क्यों नहीं है? उसका कारण है बच्चे कि क्लोरीन का साइज बड़ा है, बिगर ऑर्बिटल्स, बॉन्ड डिस्टेंस भी ज्यादा है. यहाँ इसके इलेक्ट्रॉन पेयर सपोज यहाँ इसके यहाँ डिस्टेंस कम है, यहाँ छोटे ऑर्बिटल है, मोर कंसंट्रेटेड है, यहाँ बड़े ऑर्बिटल है. इलेक्ट्रॉन पेयर ज्यादा क्या है बच्चे? एरिया घूम रहा है, वो ज्यादा डिफ्यूज्ड है, तो उसकी रिपल्शन पावर कम है, इसकी रिपल्शन पावर ज्यादा है. तो फ्लोरीन इज मोस्ट रिएक्टिव, तो वायलेंट है इसका रिएक्शन. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. नाउ नेक्स्ट वी हैव from dionium salt. This is also very simple, not very tough. From dionium salts. What are dionium salts? Diazonium, as nitrogen को बोलते हैं बच्चे. So here what we do? We prepare haloarenes from benzene diazonium. Em mean positive. N triple bond N positive. Diazonium हो गया benzene diazonium halide जैसे क्लोराइड. इसकी बात कर रहा है. आप इसको शॉर्टकट में ऐसे भी लिख सकते हैं बच्चे. N2 पॉजिटिव Cl नेगेटिव बेंजीन डाइओनियम क्लोराइड. एक चीज आप इसमें नोट करें, नाइट्रोजन इज कैरिंग पॉजिटिव चार्ज, तो ये इस बॉन्ड पे स्ट्रेस डाल रहा है, इस बॉन्ड को रिमूव करने की ताक में है. हमने सूटेबल न्यूक्लियोफाइल से इसको ट्रीट करना है. सूटेबल अटैकिंग रीजन से हमने ट्रीट करना. यहाँ पे ये सफिशिएंट अमाउंट ऑफ क्या ला रहा है बच्चे? पॉजिटिव चार्ज. नॉर्मली बेंजीन पे नेगेटिव अटैक नहीं करता बिकॉज बेंजीन इज इटसेल्फ इलेक्ट्रॉनिकली रिच, लेकिन नाइट्रोजन एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है और पॉजिटिव चार्ज कैरी कर रहा है. इस बॉन्ड को ये तोड़ना चाहता है बच्चे. इट वांट्स टू ब्रेक दिस बॉन्ड. यहाँ पे बहुत ज्यादा प्रेशर पड़ रहा है इस कार्बन एटम, बहुत ज्यादा पॉजिटिव चार्ज ये फील कर रहा है. हमने सिर्फ सूटेबल रीजन से ट्रीट करना, जैसे हमने किया क्यूप्रस क्लोराइड इन प्रेजेंस ऑफ HCl. क्यूप्रस CuCl क्यूप्रस है बच्चे, क्यूप्रिक नहीं है. क्यूप्रिक होता है CuCl2. क्यूप्रस इट हैज पार्शियल पॉजिटिव, इट हैज पार्शियल नेगेटिव. ये अटैक करेगा. वी गेट क्लोरो. सिंपल, वेरी सिंपल. वी गेट क्लोरो. प्लस क्या बनेगा दिख रहा है आपको? नाइट्रोजन, ये N2 बच्चे. प्लस क्या बनना बच्चे? इधर से क्लोरीन गया, इधर से आ गया, बात तो एक ही है. क्यूप्रस क्लोराइड एज कैटलिस्ट हो गया. सेम चीज है ना, क्यूप्रस क्लोराइड, क्यूप्रस क्लोराइड. इसी तरह से क्यूप्रस ब्रोमाइड इन प्रेजेंस ऑफ HBr, सेम. आयोडीनेशन करनी हो तो पोटेशियम आयोडाइड का इस्तेमाल किया, ये बच्चे ऐसे. रिएक्शन सेम होगा. आई नेगेटिव ने अटैक किया. क्यों किया? मैंने पहले बता दिया कि बेंजीन डाइओनियम क्लोराइड, बेंजीन ये हो गया बच्चे, डाइएजोनियम ये हो गया. एज मीन नाइट्रोजन, ई मीन पॉजिटिव चार्ज. इस नाइट्रोजन के 4 बॉन्ड बने हैं बच्चे, तो इट हैज पॉजिटिव. नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बनाता है, आपको पता है. और Cl नेगेटिव, सॉल्ट है साथ में Cl नेगेटिव. इसके ऊपर पोटेशियम आयोडाइड से ट्रीटमेंट दिया तो आई नेगेटिव, ये अटैक करेगा. यहाँ मैंने कहा ना, यहाँ स्ट्रेस फील हो रहा है, ये बॉन्ड तोड़ने की कोशिश कर रहा है. नाइट्रोजन अपने पॉजिटिव चार्ज को खत्म करना चाहता है टू गेट इटसेल्फ स्टेबलाइज्ड. ठीक है बच्चे. एक चीज, अगर आपने फ्लोरोबेंजीन बनानी है, चलो वो बाद में देखते हैं. इसने यहाँ पे ये बताया हुआ है आपके जर्नल के लिए सही कि ये जो हमने डाइओनियम सॉल्ट इसको कैसे बनाया, हाउ इट वाज प्रिपेयर्ड फॉर जनरल नॉलेज. नहीं करना होगा नहीं करना, ये बच्चे वैसे आपने पढ़ना है, आपके सिलेबस में है, बाद में एनिलीन भी है, ये भी है, एंड में पढ़ना आपने इसको. तो इसको कैसे बनाया? कैसे बनाया? बाय ट्रीटिंग एनिलीन विद नाइट्रस एसिड. ये है बच्चे नाइट्रस एसिड इन प्रेजेंस ऑफ HCl. एनिलीन को ट्रीट किया नाइट्रस एसिड से इन प्रेजेंस ऑफ क्या बच्चे? HCl. देयर इज लॉस ऑफ वाटर. N डबल बॉन्ड NCl आपको दिख रहा है कि ऐसे बन रहा है. N डबल बॉन्ड NCl ये दिख रहा है कि ये बन रहा है, ये बच्चे, और ये बनता नहीं.
क्लोरीन आपको पता है इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग है, इस तरीके से ये अपने आप को चेंज कर लेता और हमें क्या मिलता बच्चे, N ट्रिपल बॉन्ड N पॉजिटिव Cl बनता ही यही है। इसका मैकेनिज्म मैं आपको करवाऊंगा डिटेल। तो इट इज प्रिपेयर्ड बाय ट्रीटिंग एनिलीन विद नाइट्रस एसिड इन प्रेजेंस ऑफ HCl। एनिलीन को ट्रीट किया बच्चे किससे, नाइट्रस एसिड से, इन प्रेजेंस ऑफ HCl एंड वी गेट बेंजीन डाइओनियम क्लोराइड। तो कल को ये लिखने का मतलब क्या है, कल को आपको एग्जामिनर कह सकता है हाउ विल यू कन्वर्ट एनिलीन इनटू क्लोरोबेंजीन, ये आपको एग्जामिनर कह सकता है। आप वहां पे सोच में पड़ जाएंगे कि सर ने तो ये करवाया नहीं, सर ने तो एनिलीन से कभी क्लोरोबेंजीन बनवाया नहीं हमें। तो बच्चे ये उसका आंसर है कि एनिलीन को पहले कन्वर्ट करो डायोनियम सॉल्ट में और डायोनियम सॉल्ट को फिर कन्वर्ट करो किसमें, क्लोरोबेंजीन, टू स्टेप। एक और चीज यहाँ लिखी है कि जो नाइट्रस एसिड हमने बात की अभी किसकी बच्चे, नाइट्रस एसिड की, सारी हमसे ये क्या यहाँ, अभी हमने बात की यहाँ पे किसकी बच्चे, नाइट्रस एसिड की। तो नाइट्रस एसिड को यहाँ देखिए बच्चे कैसे बनाया है, नाइट्रस एसिड हैज बीन प्रिपेयर्ड इन सिटू, उसी वक्त बनाया है बाय ट्रीटिंग सोडियम नाइट्राइड विद HCl, रिएक्शन में ही बनाया है सोडियम नाइट्राइड विद HCl। क्या बनेगा बच्चे, नाइट्रस एसिड प्लस सोडियम क्लोराइड। नाइट्रस एसिड फिर रिएक्ट करेगा एनिलीन इन प्रेजेंस ऑफ HCl। एक और चीज है, डायोनियम सॉल्ट की जो स्टेबिलिटी है, मतलब कितना अनस्टेबल होगा, मैं भी बात कर रहा था ना, कौन सी बात कर रहा था आपसे मैं आपसे बात कर रहा था कि जो बेंजीन डायोनियम क्लोराइड है, इट इज हाईली अनस्टेबल बिकॉज नाइट्रोजन इज कैरिंग पॉजिटिव चार्ज। आप इसी चीज का अंदाजा लगा लें कि इसकी जो स्टेबिलिटी है वो 0 to 5 डिग्री सेल्सियस के बीच में ही है। अगर इस बीच में आप टेम्परेचर रखेंगे तो ये बनेगा कंपाउंड, नहीं तो नहीं बनेगा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये देखिए लिखा है 273 to 278, उससे आपको अंदाजा हो जाता है कि ये बॉन्ड कितना अनस्टेबल है ना। तो उसके बाद नेक्स्ट बच्चे चलते हैं हम, फ्लोरोबेंजीन। हमने क्लोरो ब्रोमो आइडो बनाए, फ्लोरोबेंजीन कैसे बना, फ्लोरोबेंजीन बनाने के लिए हमने क्या किया, बेंजीन डायोनियम, जो ये इसको सैंडमेयर रिएक्शन कहते हैं बच्चे, दिस रिएक्शन इज कॉल्ड एज सैंडमेयर रिएक्शन, जो अभी हमने किया, पता नहीं तो लिखा नहीं लिखा है, देख लेते हैं, हाँ लिखा है सैंडमेयर रिएक्शन, जो भी हमने किया सैंडमेयर रिएक्शन। तो सैंडमेयर रिएक्शन से हमने बनाया, क्या बनाया बच्चे, हमने बनाया क्लोरोब्रोमो बेंजीन। अब जो फ्लोरोबेंजीन है उसके लिए रिएक्शन को थोड़ा सा मॉडिफाई किया, क्या किया है दिखाता हूं। सैंडमेयर फ्लोरोबेंजीन नहीं बना पाया, तो इसमें क्या किया गया, मॉडिफिकेशन किया गया, एनिलीन को ट्रीट किया गया नाइट्रस एसिड से। नाइट्रस एसिड कहां से आया बच्चे, सोडियम नाइट्राइड से, नाइट्रस एसिड दिखाऊंगा इन प्रेजेंस ऑफ HCl नहीं, HbF4, वेरी स्ट्रॉन्ग एसिड, HbF4, H पॉजिटिव BF4 नेगेटिव। यहां से लॉस ऑफ वाटर जैसे मैंने दिखाया, यहां भी लॉस ऑफ वाटर, बट डायोनियम सॉल्ट यहां भी बढ़ना, यहां भी डायोनियम सॉल्ट ही बढ़ना बच्चे, लेकिन थोड़ा सा उसमें फर्क होना, पॉजिटिव BF4 नेगेटिव, वहां पे क्या था बच्चे Cl नेगेटिव, यहाँ पे क्या हो गया BF4 नेगेटिव। वहां हमने लिया था HCl, यहाँ लिया HbF4, एसिड चेंज किया, फ्लोरीन का ही लिया, इसमें कुछ नहीं डालना, इसको सिंपली हीट करो, यही F नेगेटिव, जो एक्स्ट्रा F नेगेटिव इसमें यहाँ अटैक करेगा, ये यहाँ बाहर, और आपको क्या मिल जाएगा बच्चे, यू विल गेट बट फ्लोरोबेंजीन प्लस नाइट्रोजन प्लस BF3, बोरान ट्राइप। This is how it is prepared by treating aniline with sodium nitrite in presence of HbF4। पहले डायोनियम सॉल्ट बनाया बच्चे, डायोनियम सॉल्ट देखें इधर, यहाँ HCl है, यहाँ क्या है बच्चे HbF4, यहाँ नाइट्रस एसिड, यहाँ भी नाइट्रस एसिड, नाइट्रस एसिड तो ऑटोमेटिकली बन जाना ना, जब सोडियम नाइट्राइड को H मिलेगा, H कहाँ से, HbF4 से, H पॉजिटिव मिलेगा, ये बना देगा क्या बच्चे HNO2, ये तो मिल जाना ना। तो ये HNO2, उधर भी हमने देखे सोडियम नाइट्राइड ही डाला था, HCl से रिएक्ट किया, इधर सोडियम नाइट्राइड HbF4 से रिएक्ट करेगा, हमें HNO2 मिल जाएगा, मतलब HNO2 से ही इसने रिएक्ट करना, जिसमें दिखा रहा हूँ, सोडियम नाइट्राइड से रिएक्ट नहीं करना इसने करना रिएक्ट HNO2 से, इन प्रेजेंस ऑफ व्हाट HbF4 एंड वी गेट डायोनियम सॉल्ट ऑफ व्हाट टेट्राफ्लोरोबोरेट, इसका मिलेगा, इसको हीट करो वी गेट फ्लोरोबेंजीन, सिंपल। एंड दिस रिएक्शन इज कॉल्ड बोल्ट्ज-शाइमर रिएक्शन।
जो ऊपर वाला किया that was very important, that was Sandmeyer reaction. This one is Wald-Scheiman reaction. ठीक है बच्चे. उसके बाद another important reaction, very simple reaction, what? Gattermann-Koch reaction. Sorry, Gattermann-Koch नहीं, Gattermann reaction. इसमें क्या है बच्चे, उसने थोड़ा सा Sandmeyer reaction को modify किया. It is a modification of what? Sandmeyer reaction और कुछ नहीं है बच्चे. It is a just simple modification. आपको याद होगा Sandmeyer reaction में हमने क्या किया, we treated benzene dionium chloride, इससे ट्रीट किया बच्चे with cuprous chloride in presence of क्या बच्चे HCl. ये किया. This was what? This was Sandmeyer reaction. अब यहां पे क्या है, in place of cuprous chloride, here we take copper powder. The difference, copper powder. Reaction वही है. अगर कॉपर पाउडर HCl लेंगे, यू गेट क्लोरोबेंजीन. हीट करना है, कॉपर पाउडर HBr लेंगे, वी गेट ब्रोमोबेंजीन. तो दिस इज सिंपल स्मॉल मॉडिफिकेशन ऑफ व्हाट? Sandmeyer reaction. Gattermann ने रिएक्शन को मॉडिफाई किया. Instead of taking what? Cuprous chloride, he took copper powder and HCl or HBr. ये बच्चे copper powder in place of cuprous halide. Commercial preparation of chlorobenzene, Rorschach's method. Commercially large scale पे बनाते हैं इस method. Commercial factories में by treating benzene with HCl in presence of oxygen. Cupric chloride is used as catalyst. हीट करना है ना, इसमें थोड़ा मतलब ऑक्सीडेशन करनी पड़ेगी, साथ साथ में ऑक्सीजन का इस्तेमाल किया हमने. एंड व्हाट वी गेट क्लोरोबेंजीन प्लस क्या बनेगा बच्चे, अंडरस्टूड है, क्लोरीन गया है यहाँ इसके साथ, तो H ऑक्सीजन से कंबाइन करके क्या बनाएगा, वाटर, प्लस क्या बनेगा, वाटर. आप बैलेंस कर सकते हैं बच्चे, 2 टाइम दिस, तो ये इसके साथ ऐड किया, इसको आप 1/2 कर लो. नो 1/2 नहीं, इसको 2 ही रहने, 1 ही रहने दो. इसको फिर से ठीक कर लेते हैं, क्योंकि H यहाँ से भी 2 आने ना, एक H 2 है ना, 2 टाइम एक H तो दूसरा H, तो 2 H यहाँ से आए, 2 H 4 H हो गए, 2 टाइम ऑक्सीजन 2 ही हो गए. दिस इज हाउ वी कन्वर्ट व्हाट? Benzene into chlorobenzene on commercial scale by treating benzene with HCl and oxygen and passing it over hard cupric chloride. इनकी मिक्सचर को पास करना over hard cupric chloride. Benzene plus HCl plus oxygen की मिक्सचर को पास करना cupric. By passing a mixture of benzene, vapors, air मतलब ऑक्सीजन हो गया, HCl की नाइट्रोजन भी एयर में होता है, बट नाइट्रोजन इज हाईली क्या कहते हैं उसको, नॉन रिएक्टिव, ट्रिपल बॉन्ड है, हाईली स्टेबल है. नाइट्रोजन आपको पता ही है, आसानी से रिएक्ट नहीं करता. ओवर हीटेड क्यूप्रिक क्लोराइड है CuCl. तो दिस वाज ऑल अबाउट व्हाट? प्रेपरेशन ऑफ, ये था बच्चे प्रेपरेशन किसकी, दिस वाज ऑल अबाउट क्यूप्रिक है बच्चे, क्यूप्रिक क्लोराइड, ऑल अबाउट प्रेपरेशन ऑफ हेलोजन. The next module we will study what properties of aryl. Thank you very much.